Jai Hind students. So today we are going to start with the rest of the question of 6.2 exercise increasing and decreasing function. Before that, those who are new to the channel, subscribe the channel, press the bell icon and like button also, and share this video whoever is in the need of these material. Now come to the question 6.2, problem 16. Prove fx is equal to log sin x is strictly increasing on this interval and strictly decreasing function on this interval. So first of all, f of x is equal to log of sin x. Now next step is find out f dash x, that is 1 upon sin x. log का होता है 1 upon angle, एंगल की दोबारा से करेंगे that is sin का होता है cos x, then again x की दोबारा करेंगे that is 1. So f dash x is equal to cot x. Now we have to show on these two intervals. So one by one, what do you mean by strictly increasing? F dash x greater than 0. Strictly decreasing, f dash x less than 0. Now when x belongs to open interval 0 to pi by 2, so f dash x, that is cot x. Cot x first quadrant में, this is first quadrant में all the trigonometric functions are positive. So cot x जो है वो भी क्या होगा इसमें? So I can write here कि cot x is positive in first quadrant, यानी कि 0 to pi by 2. Then it means f dash x is greater than 0. So therefore function is strictly increasing on this interval. So function, f of x is strictly increasing on interval 0 to pi by. Now come to the second. Second है when x belongs to pi by 2 to pi. So f dash x वो क्या है? cot x. ये सेकंड क्वाड्रेंट है और इन सेकंड क्वाड्रेंट cot भी ऑलवेज क्या होता है? नेगेटिव. कैसे चलता है? ऑल साइन यानी स्कूल, साइन का उल्टा ऑल स्कूल टू कॉलेज, और एड शुगर टू, ठीक है, कॉफी. सो 10 कॉट और यहां पे कॉस सेकेंड, और इसमें और तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है? नेगेटिव है. तो कॉट एक्स इज नेगेटिव इन सेकेंड quadrant. Therefore f dash x is less than 0. तो function is strictly decreasing. fx is strictly decreasing किसमें? open interval pi by 2 to pi. So pause the video to note down. Now come to next question, that is problem 17. And what is problem 17? क्या है problem 17? Let me rub first. Problem 17 हमें कहता है कि prove that the function f of x is equal to log x. Problem 17, f of x is equal to log of x. ये क्या है? log of cos of x is strictly decreasing on 0 to pi by 2 and strictly increasing on pi by 2 to pi. So हमें प्रूफ करना है strictly decreasing कहां से? 0 to pi by 2 and strictly increasing pi by 2 to pi. This we have to prove. So solution, f of x is equal to log x. So सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप होता है that is
एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स क्या होगा? 1 अपॉन एंगल, एंगल की दोबारा से कॉस की करेंगे माइनस साइन एक्स, और एक्स की करेंगे दैट इज 1। सेम क्वेश्चन लाइक 16, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस 10x। Now, intervals are given. We have to find out कि on this interval it is decreasing, in this strictly increasing. So one by one. First, when x belongs to, क्या होगा? जब x belong करेगा किसको? 0 to pi by 2. तो f dash x क्या होगा? f dash x कितना है? minus 10x. So this is first quadrant, and in this quadrant this 10x क्या होता है? Is positive when x belongs to 0 to pi by 2. 10x is positive when x belongs to 0 to pi by 2. But due to this negative sign, f dash क्या हो जाएगा? Less than 0. Therefore, it is strictly decreasing function. तो इस इंटरवल में ये क्या हो जाएगा? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। सेकेंड पार्ट, व्हेन x बिलोंग्स टू पाई बाय 2 टू पाई, f डैश x is equal to minus 10x. Now in this second quadrant, according to that table, second quadrant, जैसे मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसिकेंट जो होते हैं दैट विल बी द पॉजिटिव फंक्शंस, रेस्ट वन ऑल आर नेगेटिव. तो 10x क्या होगा? 10x इज नेगेटिव इन व्हेन x belongs to pi by 2 to pi. But due to this negative sign, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस. बट ड्यू टू नेगेटिव साइन ये प्लस हो जाएगा, एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा? ग्रेटर देन 0. ये क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 0. देयरफॉर इट इज इंक्रीजिंग, sorry, not increasing, strictly increasing function. So likewise we can solve these kind of questions. Pause the video to note it down. Come to the next question. So next question क्या कहता है? 18th question. Prove that the function, 18th question कहता है prove that the function f of x is equal to x cube minus 3x square plus 3x minus 100 is increasing in R. Is increasing in R. R means real number. So increasing, strictly decreasing की definition तो होती है f dash x greater than 0, f dash x less than 0. But whenever we will talk about increasing or decreasing, तो definition क्या होती है इसकी? इसकी definition होती है f dash x greater than equal to 0. Increasing का मतलब क्या होता है? f dash x greater than equal to 0. So let us see, find out f dash x. सबसे पहले solution f of x क्या है? x cube minus 3x square plus 3x minus 1. And we have to prove, हमें क्या prove करना है? We have to prove that this function is increasing in R. So find out f dash x, that is 3x का square minus 6x plus 3. 3x का square minus 6x plus 3. So f dash x, take common, 3 is the common, x square minus 2x plus 1. So ये हो जाएगा क्या? 3x minus 1 का होल स्क्वायर, x minus 1 का a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab. Now listen very carefully.
ध्यान से देखें, x किसको बिलोंग कर रहा है? इट इज गिवन दैट x बिलोंग्स टू r, यानी रियल नंबर। इस पे हमें बताना है कि दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन। नाउ आप x की कोई भी वैल्यू पुट करें, पुट एनी वैल्यू ऑफ x, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, कोई भी वैल्यू पुट करें, -1 पुट करें तो भी स्क्वायर बन के वो पॉजिटिव हो जाएगा। इफ यू पुट एनी वैल्यू ऑफ x फ्रॉम दिस रियल नंबर, अगर मैं यहां 1 पुट करता हूं तो एट द मोस्ट ये क्या बनेगा? 0। इसका मतलब ये हुआ फॉर x बिलोंग्स टू r, f dash x is greater than equal to 0. For x belongs to r, f dash x greater than equal to 0. Therefore, it is increasing function when x belongs to r. कोई भी टर्म इसकी नेगेटिव नहीं बन सकती। Pause the video to note down. The last question of this exercise. The interval in which y is equal to this is increasing. Increasing means we have to prove f dash x greater than equal to 0. This is given in some of the book of NCERT. कोई old version है या नया, उसमें here it is written open interval. So open interval जो है ये गलत है, क्योंकि we are talking about increasing function. Let us see कि whether open interval come or whether closed interval come or whether any other answer will come. देखते हैं. So solution. कुछ बुक्स में ये closed interval दे रखा है, कुछ में open दे रखा है. So y means f of x is equal to x square e की power minus x. Find out f dash x. Use product rule. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ई का करेंगे एज इट इज, पावर का करेंगे -1 प्लस ई की पावर -x का इनटू 2x। टेक कॉमन, कॉमन कितना आ जाएगा? ई की पावर -x इंटू x। व्हाट इज लेफ्ट इनसाइड? यहां पे बचा x, किसका? माइनस का। यहां पे क्या बचा? +2। नाउ f dash x इज इक्वल टू, ध्यान से देखें तो e की पावर -x इंटू x 2 - x। नाउ पुट f dash x इज इक्वल टू 0 टू फाइंड आउट द क्रिटिकल पॉइंट्स, जिसपे वैल्यू चेक की जाएगी, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, इंटरवल्स बनाए जाएंगे। सो दिस x इज इक्वल टू 0 आ गया और एक x इज इक्वल टू कितना आ गया? नाउ ड्रॉ ए नंबर लाइन, यहां पे 0, here 2, infinity, -infinity. How many intervals are there? 1 2 3. 3 intervals are there. Now come here. So what about f dash x? f dash x हमारे पास क्या है? ध्यान से देखें तो ये है x 2 - x अपॉन e की पावर x। इस नेगेटिव को मैंने पॉजिटिव कर दिया टू ब्रिंग इट इन डिनोमिनेटर। नाउ राइट डाउन द इंटरवल्स, -infinity to 0. ओके, 0 to 2, then 2 to infinity. So it is increasing function. अगर ये इंक्रीजिंग है तो क्लोज्ड इंटरवल यूज किए जाते हैं इंक्रीजिंग के लिए, वो आप बाद में लगा लें या अभी लगा लें, दैट इज अप टू यू, क्योंकि इन पॉइंट्स पे भी वैल्यू चेक होती है इंक्रीजिंग फंक्शन में। सो दैट इज अप टू यू। फर्स्ट यू कैन फाइंड विद द ओपन इंटरवल एंड एट द लास्ट व्हाइल यू आर राइटिंग द आंसर जस्ट पुट क्लोज्ड इंटरवल, और पहले भी आप लगा सकते हैं, दिस इज योर चॉइस। इंटरवल्स, नाउ सबसे पहले x, then 2 - x, then e की पावर x। ओके, उसके बाद f dash x
जो भी होगा ग्रेटर देन होगा, क्लोज इंटरवल है तो वी विल सी क्या रहेगा। सबसे पहले इस इंटरवल को चेक करते हैं, माइनस इंफिनिटी टू जीरो, यहां पे ये इंटरवल है ही नहीं। सी माइनस इंफिनिटी टू जीरो इंटरवल है ही नहीं। देन बिटवीन 0 to 2 अगेन दिस इंटरवल इज नॉट देयर बिटवीन 0 to 2। बट चलो चेक कर लेते हैं। जैसे ही मैं ये वैल्यू पुट करूंगा 0 से कम यानी कि -1, तो -1 पुट करूंगा तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, और इस पे ये डिनोमिनेटर में था, आई कैन राइट लाइक दिस। इस पे माइनस होगा तो अगेन इट विल बिकम पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव आ गया, तो दिस इज, ये आ गया लेस देन 0। And if I am putting here close interval, then I have to write less than equal to. If I am putting here close interval, then I have to write. और अगर आप open interval लिख रहे हैं तो only you have to write less than. Second, between 0 to 2. 0 से 2 के बीच में बात करते हैं तो 1 आता है, यहां पे पुट करेंगे पॉजिटिव, यहां पे पुट करेंगे पॉजिटिव, ये डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो अगेन दिस टर्म विल बिकम पॉजिटिव। सो ये क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ये इंक्रीजिंग है बट दिस लिमिट इज नॉट देयर। कम टू दिस, सॉरी दिस लिमिट इज देयर, कम टू दिस 2 to infinity, 2 से बड़ा कोई भी इसमें पुट करेंगे, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज क्या, पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव आ गया, लेस देन इक्वल टू 0। It means the function, this function is increasing function. F dash x is greater than equal to 0 when x किसको belong करना चाहिए, closed interval 0 to 2. It means here closed interval required. Open interval नहीं आएगा आंसर, closed interval आएगा. In some of the NCERT book it is closed interval, but in some it is open interval. That is wrong. Closed interval is the right answer. Pause the video to note down and solve all the questions of this exercise. It's very important exercise and very easy also. I tried to solve all the question and concept with the as easy as much I can, it is possible. So solve all the question. Now we will start with the introduction part of the tangent and normal. First pause the video to note down. Now come to the introduction of tangents and normal. Exercise 6, introduction of exercise 6.3. Again, this is very important topic. This topic we always use in mathematics, physics also, and in competitive examination also. So today I am going to tell you that कि what do you mean by tangent and normals? होते क्या है tangent? एक इक्वेशन लिख देना और फाइंड कहना कि दिस इज टेंजेंट। सो फ्रॉम वेयर वी आर गेटिंग दिस टेंजेंट? सो सबसे पहले वी विल रिकॉल द स्ट्रेट लाइंस दैट वी स्टडीड इन 11th स्टैंडर्ड। सो क्या कहती है स्ट्रेट लाइन? स्ट्रेट लाइन कहती है कि इफ ए लाइन मेक्स थीटा एंगल विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, और ये जो एंगल होता है ये एंटी क्लॉकवाइज बनता है ऐसे। तो व्हेन ए लाइन मेक थीटा एंगल in the positive directions of x-axis with x-axis, then I can write m is equal to tan theta, and this is called the slope of tangent. m is equal to tan theta. This we studied in 11th class. अब ये tan theta क्यों लिखते हैं, that also I will tell you. Before that, what is the equation of line which you studied? Equation of line हमने जो पढ़ी है वो क्या पढ़ी है? y minus y1 equal to slope of tangent, that is m, x minus x1, और इसे क्या कहते हैं? पॉइंट स्लोप फॉर्म।
y minus y1 is equal to m stand for slope of tangent x minus x1. ये this is m. If it passes through the origin, तो क्या होगी? y is equal to mx. When it passes through the origin, जब ये origin से पास करेगी तो स्लोप क्या बन जाएगी? ये इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है? y is equal to mx. नाउ नेक्स्ट, जो 11th में हमने, नाउ स्टिल वी आर गेनिंग आवर नॉलेज वट एवर वी स्टडीड इन 11th step. If a line is there and 2 points are there, x1 y1, x2 y2, एक लाइन पे 2 पॉइंट हैं, एंड इफ आई वॉन्ट टू फाइंड आउट द स्लोप ऑफ दिस लाइन, तो क्या होगी? 2 पॉइंट फॉर्म, x2 माइनस m की वैल्यू क्या होगी? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. If 2 points are passing through a line, then what is the slope of that line? y2 minus y1 upon x2 minus x1. थर्ड, कोई भी दो लाइन अगर परपेंडिकुलर हो जाती हैं, इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, इट मीन्स, इसका यह मतलब है, ध्यान से देखें, इफ L1 L2, लाइन L1 is perpendicular to L2, this is first, second, this is third, this is fourth. Line L1 is perpendicular to L2, it means that is product of their slope is equal to -1. तो इसकी स्लोप और इसकी स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल होगा? -1 के इक्वल होगा. एंड वाइस वर्सा ऑल्सो, कि अगर किसी भी दो स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल आ जाता है, देन दैट टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. देन कम टू फिफ्थ कॉन्सेप्ट. फिफ्थ क्या है? इफ L1 इज पैरेलल टू L2, अगर कोई दो लाइन पैरेलल होती हैं, इट मींस, इसका मतलब होता है कि उन दोनों के जो स्लोप हैं, दे आर ऑल्सो इक्वल. इफ टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, इट मींस देयर स्लोप आर ऑल्सो इक्वल. सिक्स्थ, कोई भी लाइन अगर x एक्सिस के पैरेलल है, लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस, तो जो स्लोप होगी, स्लोप ऑफ द लाइन, वो क्या होगी? अगर कोई भी लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो उसकी जो स्लोप होगी वो क्या होगी? 0. और अगर इफ इट इज गिवन टू यू कि द स्लोप ऑफ ए लाइन इज इक्वल टू 0, इट मींस दैट लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस. 7, अगर कोई भी लाइन x एक्सिस के परपेंडिकुलर है, इट मींस 90 डिग्री बना रही है, तो दिस इज L1, दिस इज x एक्सिस. इफ L1 इज परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, अगर कोई भी लाइन x एक्सिस के परपेंडिकुलर है, देन इट मेक 90 डिग्री विद द x एक्सिस. तो हमारे पास फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक, यानी कि ये, तो 90 का मतलब कितना आ जाएगा? नॉट डिफाइंड. तो अगर कोई भी लाइन x एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो वी कैन से दैट स्लोप ऑफ दैट लाइन इज नॉट डिफाइंड. यानी m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा. अब एक्चुअल में ये m है क्या? So these are the point that I written and you have to write in your copy also. First pause the video to note down. Now 8th point. Let an angle, an acute angle, say theta, between two lines. मैं दो लाइन लेता हूं. Between two lines
L1 and L2 and having slope M1, M2. Two lines are there जिनकी स्लोप M1, M2 है और उनके बीच का एंगल क्या है? थीटा है. Then how to find out that theta? तो उसका जो फॉर्मूला होता है that is tan theta is equal to M2 minus M1 upon 1 plus M1, M2, where 1 plus M1, M2 should not equal to 0. This also you studied in 11th class. कोई भी दो लाइन जिसके बीच का एंगल थीटा है और उन दोनों की स्लोप हमें गिवन है, तो हाउ टू फाइंड आउट tan theta? That is this. Now second, tan theta means tangent theta. Ninth point, the slope of line. The slope of line. कौन सी लाइन? AX plus BY plus C is equal to 0. If this kind of line is given to you, what is the slope of line? तो स्लोप ऑफ लाइन होती है, कितनी होती है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y. कोफिशिएंट क्या होते हैं? जो कांस्टेंट टर्म x के साथ मल्टीप्लाई में है विद देयर साइन. तो माइनस a अपॉन b, माइनस a अपॉन b. So these are some you can say that we recall all the previous knowledge. This we studied in the 11th standard in the chapter straight line. Now come to 12th standard. What do we mean by tangent? Pause the video first to note down. Now our main topic, that is tangents. Then how to find out the derivative as slope of tangent. Then what is the equation of tangent? What is the equation of tangent? What is the equation of normal? सबसे पहले तो मैं आपको एक रफली आइडिया दे देता हूं. लेट दिस इज ए कर्व. ये एक कर्व है. इस कर्व पे मैं एक पॉइंट लेता हूं, थोड़ा बड़ा करके बनाता हूं. दिस इज, ये एक कर्व है. कर्व पे मैं एक पॉइंट लेता हूं. लेट दिस इज P पॉइंट. नाउ मैं यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूं जो इस पॉइंट को पास करता हुआ जा रहा है. सो ये है टेंजेंट. दिस इज कॉल्ड, ये एक ऐसा पॉइंट जहां से ये क्या ड्रॉ किया है मैंने? टेंजेंट ड्रॉ किया है. अब now I am going to draw a perpendicular line on this tangent passing through this point, और जिसको हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं. एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर रहा हूं जो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, स्ट्रेट लाइन जो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से क्या कर रही है? पास कर रही है. और कितने डिग्री का एंगल बना रही है? 90 डिग्री का एंगल बना रही है. तो ये होता है नॉर्मल. इसे कहते हैं नॉर्मल. और ये जो टेंजेंट की लाइन है, इफ इसे, अगर इसकी इक्वेशन मुझे निकालनी है तो दैट इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. और वो क्या होती है? वो होती है एट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट. कोई भी टेंजेंट की इक्वेशन या टेंजेंट निकाला जाता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाली जाती है, तो वो पॉइंट पे निकाली जाती है. किस पॉइंट पे? जो भी ये पॉइंट है. तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आएगी? y minus y1 is equal to dy upon dx at जो भी पॉइंट दे रखा है xy, x minus x1. This is the equation of tangent. And how to find out equation of normal? Equation of normal वो कैसे निकाली जाती है? वो होती है y minus y1 equal to slope of normal. स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है -1 अपॉन dy अपॉन dx एट पॉइंट xy, x माइनस x1. अब ये कैसे आया? सो जस्ट रिकॉल द प्रीवियस नॉलेज ऑफ 11th क्लास कि जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो उनकी जो स्लोप का प्रोडक्ट होता है वो किसके इक्वल होता है? -1 के इक्वल. सो m1 इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट, m2 इज द स्लोप ऑफ नॉर्मल. तो अगर नॉर्मल की स्लोप निकालनी है
तो -1/m1। और स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते हैं? dy/dx। बट dy/dx क्यों? हम तो अभी बात कर रहे थे कि स्लोप जो निकाली जाती है लाइन की वो होती है m = tan थीटा। बट स्लोप ऑफ लाइन m = tan थीटा से भी निकाली जा सकती है और dy/dx से भी निकाली जा सकती है। हाउ? दैट वी विल डिस्कस नाउ। बट आई होप यू अंडरस्टूड कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होती है, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है इस पॉइंट पे जो dy/dx है, और स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है। नाउ अब ये निकाले कैसे जाते हैं? वाई वी कंसिडर dy/dx इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट, वाई वी कंसिडर दिस -1/dy/dx स्लोप ऑफ नॉर्मल। लेट अस सी, देखते हैं। मैं एक फंक्शन लेता हूं, लेट y = f(x). ये कर्व है, सॉरी एक कर्व लेते हैं, y = f(x). एक कर्व लेता हूं, ठीक है, और ये जो कर्व है एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान से देखें। ये जो लाइन है ये इस सब कर्व को टच कर रही है P पॉइंट से, XY। सो पॉइंट क्या लिया? एट पॉइंट P। लेट अस टेक एन कर्व y = fx एट पॉइंट P XY। तो ये XY है, तो ये हुआ x। मैं इस पॉइंट को ड्रॉ करता हूं, दिस इज कॉल्ड x। ये क्या हुआ? y। और यू कैन से दैट ये y हुआ, और यू कैन से दैट fx हुआ। अब ध्यान से सुने, ये यहां तक x है। अगर मैं इस x पॉइंट में कोई इंक्रीमेंट करता हूं, इफ आई इंक्रीज द वैल्यू ऑफ x, तो ऑटोमेटिकली y क्या हो जाएगा? वो भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो जो इंक्रीमेंट लगाया मैंने x में, वो क्या लगाया? डेल्टा x, इंक्रीमेंट। तो अब पॉइंट जो बनेंगे वो क्या बनेंगे? x + डेल्टा x और y + डेल्टा y। उस पॉइंट का जो नाम है वो मैं a लिख लेता हूं, और वो ये बना लेता हूं यहां पे। ये जो लाइन बनाई थी जो यहां पे पहुंची, सो ये जो इंक्रीमेंट है x + डेल्टा x और y + डेल्टा y, दिस पॉइंट इज a। अंडरस्टैंड इट वेरी प्रॉपर केयरफुली। बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है ये फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कि वाई वी कंसीडर f'(x) एट द पॉइंट टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो ध्यान से देखें, x में मैंने इंक्रीमेंट किया डेल्टा x का, y में इंक्रीमेंट किया डेल्टा y का। सो वो जो इंक्रीमेंट था वो पॉइंट ये है। अब ये जो लाइन है, दिस इज AP लाइन, दिस इज व्हाट? सीकेंट ऑफ द कर्व। ये क्या है? सीकेंट है कर्व की। अब मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूं, लो एक्सटेंड कर दिया। ये क्या है? ये है डेल्टा y। ये क्या है? डेल्टा x। अब ये टोटल कितना आ गया? ये टोटल जो आया, ये आया y + डेल्टा y, और ये टोटल कितना आया? x + डेल्टा x। टिल हियर, ओके, दिस इज C। नाउ अगेन, ये जो लाइन है इसका मैं पॉइंट B मान लेता हूं। लेट थीटा बी द एंगल मेड बाय दिस लाइन विद द पॉजिटिव x एक्सिस। तो अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा? थीटा होगा। सो कैन आई फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ tan थीटा? तो क्या मैं tan थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूं? इन ट्राइंगल APC डेल्टा y/डेल्टा x। ये tan थीटा की वैल्यू आई, क्या आई? डेल्टा y/डेल्टा x। अब ध्यान से देखें कॉन्सेप्ट dy/dx कैसे बनेगा।
जैसे ही ये डेल्टा एक्स जीरो की तरफ अप्रोच करेगा, डेल्टा एक्स कहां से कहां तक है, यहां तक, इट टेंड्स टू जीरो, यानी रोटेट करेगा। जैसे ये डेल्टा एक्स इस तरफ आएगा, व्हेन डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, यानी वो जीरो की तरफ बढ़ेगा यहां से, यानी इस पॉइंट तक आना है, तो ये जो लाइन है, ये लाइन रोटेट करना शुरू हो जाएगी किसकी तरफ, पी के। ये लाइन रोटेट करना शुरू हो जाएगी ऐसे, यानी ये जो लाइन थी, जैसे ही ये डेल्टा एक्स कम होता जाएगा, ये रोटेट करना शुरू हो जाएगी किस पॉइंट पर, पी पॉइंट पर। और ये क्या बना देगा, ध्यान से देखें, दिस लाइन, ये जो लाइन बनेगी, दिस इज द टेंजेंट। ये टेंजेंट लाइन ड्रॉ हुई। जैसे ही डेल्टा एक्स जीरो की तरफ अप्रोच करेगा, ये लाइन ऐसे रोटेट करेगी, क्योंकि ये खत्म होता जाएगा, थीटा खत्म होता जाएगा, ये रोटेट करेगी। जब ये रोटेट करेगी तो ये कहां तक रोटेट करेगी, पी पॉइंट तक। तो ये क्या बन जाएगा, ये टेंजेंट बन जाएगा। और ये एंगल क्या बन, इसको मैं मान लेता हूं अल्फा। सो व्हेन डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, दिस एपी विल रोटेट किस पे, ऑन पी। और जो थीटा होगा वो क्या बन जाएगा, थीटा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, अल्फा में, एंगल में। तो नाउ अब ध्यान से देखें, अगर थीटा अल्फा में रोटेट हो जाएगा तो लिसन वेरी केयरफुली। अब टेन थीटा अगर मैं निकालता हूं, ध्यान से देखो, टेन अल्फा, टेन अल्फा क्या होगा, टेन अल्फा होगा लिमिट कहां से, ए टू पी। ये जो लिमिट लगी है टेन अल्फा की, ये कहां से लगी है, ए टू पी, ऐसे टेन थीटा। देन लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, ए टू पी पे जो लिमिट है वो डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो लगाई है। टेन थीटा की वैल्यू कितनी है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, और इसको लिखा जा सकता है डी वाई अपॉन डी एक्स और एफ डैश एक्स। So this is the slope of the tangent. That's why we consider f dash x or dy upon dx as a slope of the tangent. अब इसको लिखेंगे कैसे, when, ध्यान से देखें, when a line, when the line makes theta, angle theta with positive direction, when the line makes theta with the positive direction of x-axis at point P on the curve, then the equation of tangent is equal to y minus y1 equal to dy upon dx xy x minus x। सो ये है कॉन्सेप्ट इसके पीछे का, कि हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और हाउ टू फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब कभी भी आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने की जरूरत पड़ती है तो जस्ट नॉर्मली, या स्लोप ऑफ कर्व, तो नॉर्मली क्या निकाल सकते हैं, एफ डैश एक्स। दिस इज द इजीएस्ट वे। और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी हो तो नॉर्मल मैंने आपको बताया क्या होता है, वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है टेंजेंट पे, जो लाइन परपेंडिकुलर होगी किसके, टेंजेंट के। कहां पे, एट पॉइंट वेयर इट मेक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये जो होता है ये क्या बन जाता है, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या बन जाती है, नॉर्मल आ जाती है -1 अपॉन dy अपॉन dx। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। नाउ लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज, सॉरी इंट्रोडक्शन, ऑर्थोगोनल कर्व्स। ये क्या होती है, व्हेन टू कर्व्स
इंटरसेक्ट ईच अदर, जब दो कर्व इंटरसेक्ट करती हैं ईच अदर एट 90 डिग्री, व्हेन टू कर्व्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, तो हम कहेंगे वो क्या होंगी, वो दोनों की दोनों कर्व क्या होंगी, ऑर्थोगोनल होंगी। तो राइट एंगल का मतलब कितना बनाएंगी, वो 90 डिग्री। इसका मतलब ये होगा कि दोनों की जो स्लोप होगी, उन दोनों लाइन की जो स्लोप होगी वो 90 डिग्री पे, यानी दोनों कर्व की जो स्लोप है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, उन दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा, -1, जैसे यहां है। यानी एक की जो स्लोप है और दूसरे की जो स्लोप है, ये जब आपस में मिले कितने डिग्री का एंगल, अगर 90 डिग्री एंगल बनाती हैं, इट मींस दे आर ऑर्थोगोनल कर्व्स। So pause the video to note down and learn this concept properly, understand this concept properly. I hope you understood well this, and if you face any kind of difficulty, then just write in the comment box or send a message on WhatsApp group. Till that, Jai Hind.